Mhm. Okay, so this is how I'm going to be recording. Or, mm, firstly, let me introduce myself. I am Sagar, a 12th grader of Kendriya Vidyalaya Deepatoli, primarily living in Ranchi, Jharkhand. If you don't know, Jharkhand is also a state in India. Okay, so I am in the what it is said. क्या बोलते हैं इसे कैपिटल रीजन। ओके, तो रांची जो है वो इसका झारखंड का कैपिटल रीजन है। तो मैं वहाँ रहता हूँ। थोड़ी कंट्री साइड लोकेशन है ये। और यहाँ पे एक केवी लोकेटेड है, केंद्रीय विद्यालय दीपाटोली। ओके, तो आई रीड देयर एंड primarily, I'll say I'm a PCM plus CS student. Okay, I got 92 and something percentage in my 10th boards. Okay, my aim was to achieve 100 out of 100 in maths of class 10th, but that wasn't uh, what I say fulfilled. Okay, I only got 98 out of 100, but and that was my peak result. Okay, so in class 10th I was in my peak, and then I started deforming because I have been separated from many of my friends, and I lose interest in study. So my 11th goes very wild. Okay, I was not, I am very weak in physics and chemistry also, a little bit good in maths, and a bit upper hand in CS. Okay, so due to my interest in coding and all, I took CS in my uh, 11th and 12th course. So I'll be telling what I'm doing right now and why I am making this video. So, primarily, firstly, let me state, currently, the only, I guess, almost 2 months are left for my board examination, because my first paper is on 20th of Feb, and today is 24th. Yeah, 24th of December. Yeah, today is 24th of December. Tomorrow is Christmas, and I'm not celebrating it because I've never been. Okay, so let me first tell you what I'm doing. How many times I will repeat this line? Okay, so winter vacation have started been 2 days earlier. Okay, अगर आपको पता होगा, लाइक केवीज में समर वेकेशंस 40 डेज के होते हैं, विंटर वेकेशंस 20 डेज के होते हैं, ऑटम ब्रेक अराउंड 10 डेज का होता है। ठीक है, और ये नंबर कभी चेंज नहीं होता। हम्म तो अगर मैं बताऊं, मुझे मैंने क्लास ट्वेल्थ में बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं की थी। अ बिट ऑफ नॉट, मतलब मैंने उसे टच भी नहीं किया है जिसे प्रिपरेशन बोला जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत 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 ख़राब आ रहे हैं। मेरे हाफ ईयरली अराउंड 60%, माय फर्स्ट प्री बोर्ड अराउंड 64 or something percentage, my second pre board almost 62 63 percentage. Yeah, sounds very disappointing to me, but that is what I've been. Okay, okay, so let's start a new journey. Not a new journey, but I've decided to change some things. Like recently I've watched. I don't know about the YouTube channel's name, but I watched a girl. Okay, who who scored 97% in boards. 97% in boards.
he took PCM plus CS as I have टेकन। ओके, जैसे मैंने PCM प्लस CS लिया है, उसने भी PCM प्लस CS लिया है, एंड शी इज लिटरली इनसेन। मेरे रिजल्ट्स 11th क्लास में इतने खराब थे, मैं उन्हें बता नहीं सकता। और उन्होंने उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया है उनके वीकेस्ट रिजल्ट्स, जो मेरे मेरे रिजल्ट से बहुत ज़्यादा बेहतर थे, लिटरली बहुत ज़्यादा बेहतर। एंड आज ही मैंने उनकी वीडियो देखी थी, लाइक समथिंग प्रिपेयरिंग फॉर 12th बोर्ड्स फिजिक्स एग्जाम एंड समथिंग, ऐसा कुछ था। और मैंने वहाँ पे उनकी प्रिपरेशन देखी, आई लव्ड इट। एंड मुझे काफ़ी टाइम से ये इंस्पिरेशन थी कि I should also start making videos. Not no. So I should document myself uh, before the boards exam, the preparation period, and after the board exam. Okay, so I'll be continue with that, क्योंकि अभी मेरे 20 days के वेकेशंस थे, जिसमें से 2 दिन कल और आज मैंने बर्बाद कर दिए, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिए। और अभी मेरे पास 20 days हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा बोला गया है कि 20 days के बाद जैसे ही आप स्कूल में एंटर करोगे, पहली चीज़ आपके प्रैक्टिकल्स चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो अब लेट नहीं करने वाले। अराउंड 10 और 12 जैन को हमारा स्कूल खुल रहा है, और उस टाइम पे आते ही हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे प्री बोर्ड्स होंगे, शायद दोनों साथ साथ ही चले, कि प्री बोर्ड्स हो रहे हैं और प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं। सो मुझे उसके लिए काफ़ी कुछ प्रिपेयर करना है, और मुझे काफ़ी कुछ क्या, मुझे सब कुछ ही प्रिपेयर करना है। मुझे 5 to 10 days में अपना सारा सिलेबस निपटाना है, बाय रीडिंग NCERT एंड ऑल। और फिर उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इन ऑल सब्जेक्ट्स। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैंने की है, 12th में आते ही मैंने सुमीता अरोरा CS की, सुमीता अरोरा, व्हाट इज द नेम, कंप्यूटर साइंस विथ पाइथन बाय सुमीता अरोरा, ये ले लिया बुक इंस्टेड ऑफ चूजिंग NCERT। मुझे अब जाके ये रियलाइज हो रहा है, जब 2 महीने बचे हुए हैं बोर्ड्स ख़त्म होने में। सो मेरे प्राइमरी गोल्स तो ये रहेंगे, कवर इट ऑल, और मैं जितना हो सकूं CS पढ़ूं। By the way, CS is not my weak subject. It is quite impressive to me. मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है CS में. So after boards, I may be pursuing with CS, but अभी अभी ये नहीं है, अभी नहीं. अभी मुझे सब पे ध्यान देना है. So to get a good result, yeah, that is what it is. Now देखो, अब मुझे ये कवर करने के लिए काफ़ी चीज़ें करनी है। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आई लिव इन 2 room हाउस। एक्चुअली मैं यहाँ पे अपने बारे में सारी चीज़ें नहीं बता सकता, बट अगर मेरी वजह से यहाँ पे कोई चेंज आता है, तो मैं ज़रूर ये कवर करूँगा कि मैंने क्या कुछ किया, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास मेरे घर पे 2 रूम है। एक वहाँ पे अंदर पे है, जिस पे फिलहाल कर्टन्स लगे हुए हैं, और ये एक बाहर में है। ओके, इतना ही दिखाऊंगा। ओके, तो एक बाहर में, एक अंदर में है। ये वो वाला रूम है जहाँ पे मेरी पूरी फैमिली रहती है। हम लोग 4 जन हैं, मी, माय मम्मी, मेरे पापा, और मेरी एक दीदी है, जो फिलहाल सेकेंड ईयर में है। मुझे उनका कोर्स नहीं पता, सॉरी, बट फिलहाल वो सेकेंड ईयर में है, और हम 4 लोग हैं, ठीक है। मेरे 12th के फाइनल्स 2 महीने में हैं, और बस इतना ही। यहाँ पे यहाँ पे हम 4 ही रहते हैं, ठीक है। हमारे जो अंदर वाला रूम है, जिसमें कर्टन्स लगे हुए हैं, तो उस रूम में ऐसा होता है कि वहाँ पे ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो वहाँ पे रात को रहना काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा।
क्या बोल रहा हूँ, पेनफुल होगा। ठीक है, वहाँ पे मम्मी बोलती है कि यहाँ पे नहीं रहना रात को क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठीक है? अगर आप वहाँ पे 15-20 मिनट बैठ गए तो विल थिंक ये कहाँ आ गए भाई। हम आइलैंड कैसे पहुँच गए, लाइक आइलैंड, सॉरी ग्रीनलैंड कैसे पहुँच गए? खैर मुझे इस आइलैंड के बारे में पहले नहीं पता था कि आइलैंड में आइस नहीं होती, वहाँ पे ग्रीनरी है, और जो ग्रीनलैंड है वहाँ पे ग्रीनरी नहीं, आइस होती है। ओके। ठीक है। तो वो वैसा रूम है, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए मैं उसे अपना पर्सनल रूम बनाता हूँ, ठीक है, टिल बोर्ड्स, और उसके बाद अगर चांस मिले तो लाइक उसे अपना रूम बनाता हूँ। वहाँ पे एक्स्ट्रा बेड तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ अरेंजमेंट्स करके वहाँ पे खुद का लाइक बेड सा कुछ बनाऊँगा, जिसमें आई विल स्टे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द माई टाइम, ठीक है? वहाँ पे एक बहुत लंबी सी डेस्क है जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ कभी-कभी। मतलब बहुत रेयरली मैं पढ़ता हूँ यार, बहुत रेयरली। मेरे मार्क्स बहुत ख़राब आते हैं इन सब चक्करों की वजह से। सो वहाँ पे जो डेस्क है, वो मेरा स्टडी टेबल आप मान सकते हो, और वहाँ पे काफ़ी फ्री स्पेस है, तो मैं वहाँ काफ़ी चेंजेस कर सकता हूँ। बेसिकली वो बहुत ही क्या बोलूँ मैं उसे, स्टोर रूम जैसा मान लो उसे, ठीक है? तो मैं उसे अपना रूम बनाने वाला हूँ कुछ टाइम के लिए, फ़िलहाल तो कुछ टाइम के लिए ही, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम होगी मम्मी को ये बताना, मम्मी मैं वहाँ रहने वाला हूँ, क्योंकि मम्मी सुनते ही डिसएग्री करेगी, बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाली है वो, ठीक है? तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो आज जो भी है, ये इतनी वीडियो आएगी जितना मैं पहली बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट एनी कटिंग्स एंड ऑल। हाँ, हो सकता है मैं थोड़ा बहुत एडिट करूँ इस पे, लेकिन ये जो शूट हो रहा है ये वन टाइम वीडियो है, ठीक है? वन टाइम वीडियो, अगर नहीं दिख रही तो वन टाइम वीडियो। ओके। सो मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ स्ट्रैटेजी वाइज, वो मैं बाद में बताऊँगा, अगर कोई और वीडियो मैं डालता हूँ तो। अगर डालता हूँ तो, अगर ये वीडियो भी डल गई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई एम वेरी शाय पर्सन। लाइक मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, आई एम काइंड एम्फोवर्ट। अगर जिन लोगों को पता होगा, एम्फोवर्ट वो होता है जो ना ही इंट्रोवर्ट होते हैं ना ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्स्ट्रो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, और मैं उन पे बहुत प्राउड करता हूँ, दे आर लाइक इनसेन। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो इंट्रोवर्ट है, जो मुझे बहुत पसंद है। और और क्या बोलूँ? बस इतना ही बोलना था। तो ये बेसिकली मेरे मतलब मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए ये है। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनी पर्पसेस ऑफ लाइक बीइंग फेमस, लेकिन वो मेरा सेकेंडरी गोल तो है। अभी मेरा इंटेंशन वो नहीं है, बट वो मेरा सेकेंडरी गोल है कि यार समझदार हो। ठीक है, तो लेट्स कट दिस ऑफ। अभी मैं फ़िलहाल एक 12th ग्रेडर हूँ, और अभी मैं वही रहना चाहता हूँ। और हो सकता है मैं आगे जाके इस पे थोड़ा काम करूँ, लाइक मेकिंग वीडियोज़ एंड ऑल, बट नाउ दिस इज़ जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटिंग माय जर्नी। ओके, इतना ही रहने देते। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाय।